Right. So all of you can see the screen. Yes. There are 20 participants. You can wait for 2-3 minutes more so that everyone can join. Right. So in the morning we have seen the topic of data collection, how to collect data, which is of two types, quantitative and qualitative. And to move forward, the most important tool for data collection in your setup is questionnaire designing. Okay, questionnaires. Questionnaires आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा. Fill this Google form and participate in our survey. So the Google form is nothing but the questionnaire that we are using as a tool for data collection. Now that questionnaire looks very simple, but it may be very complex to design. Okay, and when you are planning to have questionnaire as your data collection tool, there are certain do's and don'ts that you should know so that your questionnaire is valid, reliable, and to the point. Okay, so we will start this session on questionnaire designing. First question that you should ask yourself before asking any question to others is that, considering my research question, objectives, etc., is questionnaire right tool? ठीक है. अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग का एफिकेसी चेक कर रहे हो, जैसे मैंने कल बताया था, कल के प्रेजेंटेशन में, पहले प्रेजेंटेशन, इफ माई रिसर्च क्वेश्चन इज टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ अ न्यू ड्रग and if I use only questionnaire, will that be good? No. I have to give the drug to patients, see, observe them, whether the drug is effective or not. So that will be completely wrong design. Questionnaires are made for a very, very specific kind of research, especially if you want to know people's attitudes, knowledge, perceptions, their style of practice. You want to know their behavior. You want to know certain aspects about their lifestyle and their opinions. So ये सब चीज़ों के लिए मेजॉरिटीली यूज होता है क्वेश्चनर. ओके, ना कि कोई इसके लिए कि डिजीज थेरेपी की एफिकेसी चेक करने के लिए वगैरह क्वेश्चनर नहीं यूज होता है. ठीक है, तो सबसे पहले आप तो रिसर्च क्वेश्चन पे ध्यान दो कि क्वेश्चनर से मेरा क्वेश्चन आंसर होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, the questionnaire is used to measure the knowledge, behavior, attitudes, preferences, opinions, intentions, satisfaction, needs of a relatively large number of subjects at a low cost. फॉर एग्जाम्पल, मुझे चेक करना है कि ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स है, ये सब तुम लोगों को कैसे लगा. तो मैं फीडबैक क्वेश्चनर बनाऊंगी, उसको मैं आपको दूंगी, और आधे घंटे में मुझे, अगर तुम सब लोगों ने भर दिया, तो आधे घंटे में मुझे इतने सारे लोगों का सब पता चल जाएगा. राइट. सो इट इज़ फॉर अ लार्जर पॉपुलेशन, इट इज़ फॉर दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन बी मेजर्ड बाय क्वेश्चंस. ठीक है. अभी टू एक्सप्लेन द ट्रेंड्स और फीचर्स ऑफ लार्ज बुक, फॉर एग्जांपल मुझे मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन कोर्स चाहिए कि ऑफलाइन कोर्स चाहिए, आप लोग ऑफलाइन में कंफर्टेबल हो कि ऑनलाइन में कंफर्टेबल हो. इतना सिंपल चीज़ के लिए आई शुड नॉट डू अ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, राइट. सो दिस इज फॉर द questionnaire, good topic for questionnaire. Now questionnaires allow the researchers to gather the data either to explain different phenomena or explain cause and effect relationship. ठीक है, and to test a hypothesis. अभी hypothesis क्या होगा मेरा, कि बच्चों को ऑनलाइन ही पसंद आया. अगर मैंने क्वेश्चन दिया और मुझे रिस्पांस मिला कि ऑफलाइन लोगों को लाइक कर, तो माय हाइपोथेसिस विल बी रॉन्ग. ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए क्वेश्चनर यूज होता है. भाई क्वेश्चनर दो टाइप के होते हैं. वन इज प्री वैलिडेटेड
and the other is not validated. वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन मतलब कोई भी चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है वही चीज़ उसमें करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूजिंग दिस माइक. This mic should capture my voice and transmit to you. That is the purpose of the mic. Correct? So, is my mic doing the thing that it is supposed to do? Is validity of the mic. ठीक है? समझ में आया? I need you to be interactive ना, थोड़ा सा हाँ ना जवाब देते जाओ तुम लोग. ठीक है? तब मुझे पता चलेगा कि तुम सुन रहे हो. ठीक है? विक्टोरिया, आशावरी, you can pop in and say yes or no. So what is validity? कि जिस चीज़ के लिए बनाया है क्वेश्चनेयर को वही वो मेजर कर रही है, कोई और चीज़ नहीं मेजर कर रही. ठीक है. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज रिलायबिलिटी. मतलब क्या है? जितने भी बार आई एम यूजिंग दिस माइक इज एवरी टाइम आई यूज इट, इट इज ट्रांसफरिंग माई वॉइस एक्यूरेटली. ठीक है. सो दैट इज रिलायबिलिटी. आई कैन रिलाई ऑन माई माइक. एंड वैलिडिटी, इट इज ट्रांसफरिंग माई ओनली वॉइस. ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये माइक में मेरा आवाज़ छोड़ के बैकग्राउंड नॉइस ट्रांसमिट करना नहीं चाहिए. ठीक है. सो वैलिडिटी मतलब जो करना है वो कर रहा है और बार बार वो कर रहा है, दैट मीन्स रिलायबल. सो ये क्वेश्चनर्स जो है, ये क्वेश्चनर्स को अपने को वैलिडेट करना पड़ता है. मतलब क्या है? आई हैव मेड अ क्वेश्चनर और मैंने ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे डाले हैं कि कुछ अलग ही मीनिंग आ रहा है उसका. ठीक है. मुझे नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने बनाया है, पर जो पढ़ रहा है जिसको उसका आंसर देना है, दैट फेलो इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वे आई एम अंडरस्टैंडिंग. सो दैट मीन्स द क्वेश्चनर इज नॉट वैलिड. सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैलिडिटी? तो अगर ऐसा है कि आपके रिसर्च टॉपिक पे कोई और स्टडी में ऑलरेडी कोई क्वेश्चनर वैलिडेटेड यूज किया जा चुका है और वो प्री वैलिडेटेड क्वेश्चनर आप यूज कर सकते हो, तो that will be better, because questionnaire designing and validation in itself is a big task. ठीक है. तो आपको रिसर्च पब्लिकेशंस में ऑलरेडी पब्लिश्ड वैलिडेटेड क्वेश्चनर अगर मिलता है तो वो यूज़ करो. अगर वो नहीं है वैलिडेटेड कोई अवेलेबल तो आपको बनाना है. ठीक है. आपको बनाना है तो उसके बाद वैलिडेशन भी करना है. ठीक है. तो ये हो गया दो टाइप ऑफ क्वेश्चनर्स. उसके बाद का क्वेश्चनर का क्लासिफिकेशन है कि हाउ इट इज एडमिनिस्टर्ड. कोई इंटरव्यूअर है जो एडमिनिस्टर कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, लिख रहा है, आंसर लिख रहा है, ऐसा है. उसमें भी दो टाइप है, फेस टू फेस बैठ के सॉल्व कर रहे हैं कि टेलीफोन पे कर रहे हैं. या फिर ऐसे हो सकता है कि सेल्फ एडमिनिस्टर, आपने पेपर दे दिया, उसने मार्क कर दिया, वापस दे दिया, नो इंटरव्यूअर नथिंग. ऐसा भी हो सकता है कि गूगल फॉर्म दे दिया और उसने सबमिट कर दिया. तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च. अभी एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चनर हो सकते हैं एंड फॉर्मल स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर हो सकते हैं. तो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन मतलब आपका एज क्या है, आपका आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी हाइट क्या है, वेट क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं. लेकिन आपको कैसा लगता है जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपको कैसा लगता है अगर आप कोई रूटीन में भाग लेते हो, योगा करते हो. सो अगर ये एक्सप्लोर करना है, डिटेल में लिखना है, तो दैट इज एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन. ओके. बेस्ड ऑन द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पॉन्स. सपोज मैंने आपको पूछा कि आप मुझे बताओ व्हाट इज द बेस्ट डे इन योर लाइफ टिल नाउ, एक्सप्लेन. तो ये ओपन एंडेड हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड. आप लिखते जाओ लिखते जाओ. लेकिन अगर मैंने बोला कि आपके लाइफ में अभी तक ग्रेजुएशन डे आपका बेस्ट डे इन लाइफ था क्या, इट विल बी यस एंड नो. तो वो क्लोज एंडेड हो गया. दैट मीन्स देयर इज अ आंसर टू दिस, यस, नो, मे बी. ठीक है. दैट इज ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड. और कोई कोई क्वेश्चनर में दोनों टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ओपन एंडेड भी, क्लोज एंडेड भी. सो दैट इज कॉल्ड एज अ मिक्स्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन. नाउ दैट इज क्लासिफिकेशन. उसके बाद है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चंस कैन बी डाइकोटोमस क्वेश्चन, जिसका आंसर है येस और नो, मेल फीमेल. ओके. So we have to make choices between the two responses, that is
dichotomous question. Then there can be multiple choice questions. You have to choose from two or more alternatives. रेटिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, और हर बार आपको क्वेश्चनर में डिजाइनिंग में इसीलिए प्रॉब्लम आता है बिकॉज यू डोंट यूज रेटिंग स्केल्स. अभी कोई कोई चीज़ का आंसर या हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता. यू कैनॉट आंसर इन यस और नो. मेल एंड फीमेल ठीक है, बट यस एंड नो नहीं बोल सकते. सपोज हाउ डू यू रैंक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. ओके, गुड एंड पुअर नहीं बोल सकते. You can have, you should have a rating scale: good, fair, poor, very poor. ठीक है. So certain questions they demand the rating scale to be used, and the most commonly used is Likert scale. ठीक है. So जैसे मैंने बताया, what are the qualities of a good questionnaire? It is valid. It is doing what is supposed to do. It is asking what is intended to ask. Reliable. The reliable questionnaire should yield the same answer if the same question is posed to the respondent repeatedly in a short span of time, and it should be interesting because the respondent might not complete it because it is so boring. Succinct. What is succinct is short. Do not cast the net wider. Okay, बहुत बड़ा जाल मत फेंको. वही पूछो जो पूछना चाहते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दे विल गेट बोर्ड. ठीक है. नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चनर. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है उसमें? टाइटल चाहिए. बहुत बार हमारा क्वेश्चनर सिर्फ क्वेश्चन चला, बट किस लिए पूछ रहे हो? वाई यू आर आस्किंग? व्हाट इज द टाइटल ऑफ योर रिसर्च इज मिसिंग. सो रिस्पॉन्डेंट माइट थिंक हु इज कलेक्टिंग दिस डेटा, वाई शुड आई फिल दिस. सो मेंशन द टाइटल, पर्पज ऑफ योर स्टडी, या फिर टाइटल ऑफ योर स्टडी. So this questionnaire is intended to collect the data for the research project titled so and so by primary investigator so and so. ठीक है. तो ये इंट्रोडक्शन में आना चाहिए. रिक्वेस्ट आना चाहिए कि प्लीज फिल दिस क्वेश्चनर. ऐसे अब्रप्टली क्वेश्चनर किसी को देना नहीं चाहिए. स्पॉन्सरर्स कोई है तो वो मेंशन चाहिए. ठीक है. और आपका अश्योरेंस चाहिए कि जो भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा वो कॉन्फिडेंशियल और एनोनिमस रहेगा. ये सब इंट्रोडक्शन में आना चाहिए. अब ये सेशन के बाद अगर तुम लोगों के ऐसे क्वेश्चनर्स आए जिसमें ये चीज़ें नहीं है तो ऑब्वियसली तुम्हारे मार्क्स कट होंगे, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं. तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप टाइटल मेंशन करो. ये सब पोलाइटनेस है कि आप उनको शुरुआत में रिक्वेस्ट कर रहे हो. अदरवाइज इट इज़ वेरी रूड. तुम एक क्वेश्चनर ला के दे दिया, भर के दे दो. वेरी रूड ऑफ यू टू डू दैट. So please respect the respondent and tell him, I am so and so, my research is so and so. Please fill this and your name will be confidential. I will not reveal your identity. So assure, don't worry. Please give a proper answer. उसके बाद इंस्ट्रक्शंस है. व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? टिक करना है कि क्रॉस करना है. एक क्वेश्चन को टिक करना है. एक क्वेश्चन को अगर ओपन एंडेड है तो बहुत सारे लेटर्स सेंटेंसेस लिखने. सब इंस्ट्रक्शंस आने चाहिए. ओके. देन ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चंस कैसे ऑर्डर करना है? सबसे पहले डेमोग्राफिक. आपका एज क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपके डिटेल्स अबाउट सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस, एवरीथिंग कम्स इनटू द डेमोग्राफिक एस्पेक्ट. उसके बाद जो आएगा दैट इज स्टार्ट विथ सिंपल क्वेश्चंस. ठीक है. सिंपल क्वेश्चन. देन आइटम्स ऑफ स्टडी ऑब्जेक्टिव. जो आपके स्टडी के क्वेश्चन है सब वो पूछेंगे. और अगर आपको कोई सेंसिटिव क्वेश्चन पूछना है या कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछना है तो सबसे एंड में पूछो. ठीक है. दिस इज द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन. और सबसे बाद एंड में क्लोजिंग स्टेटमेंट देना. ठीक है. दैट कंक्लूड्स द क्वेश्चनर एंड थैंक्स फॉर participating in this survey, taking out your time, and in case of any queries please contact me as a primary researcher. Mention your email, mention your phone number and say thank you. बहुत बार हम लोग उनका रिस्पोंडेंट का ईमेल मांगते हैं, उनके फ़ोन नंबर मांगते हैं, लेकिन हमारा नाम और हमारा नंबर कहीं नहीं आता है. ठीक है. सो दैट इज रिक्वायर्ड. राइट. सो कमिंग टू लेआउट एंड डिज़ाइन. कैसे करना है? अपीयरेंस ऑफ योर क्वेश्चनर विल गो लॉन्ग वे. ठीक है. सुंदर दिखना चाहिए वो. ऐसे हैफजार्ड, नो एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, फॉन्ट अलग अलग है, बराबर से अलाइनमेंट नहीं है, वैसा नहीं चाहिए. ठीक है.
ऑलवेज अलाउ इनफ रूम फॉर रिस्पॉन्डेंट टू आंसर द क्वेश्चन. स्पेस दो अच्छे से लिखने के लिए. नीटनेस चाहिए, क्लियर हेडिंग्स, नंबरिंग्स, एंड थिंक अबाउट इंक्लूडिंग पिक्चर्स. अगर आपको वो एप्लीकेबल है तो बेटर है. ठीक है. नाउ स्टेप्स इन क्वेश्चनर डेवलपमेंट. Adopt a pre-validated questionnaire. Remember this always, that if you can find a questionnaire which is already validated in previous studies, use it. If you want to change it, you will have to revalidate. Okay? If it is available in other language, translate and validate. And pilot test. पायलट टेस्टिंग मतलब अगर मेरा सैंपल 100 का है तो मैं 10 लोगों को दे के आऊँगी और फिर रिजल्ट्स एनालाइज करूँगी कि बराबर इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है. दैट इज कॉल्ड एज पायलटिंग. वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑफ पायलटिंग स्टेप ऑलवेज मिस्ड बाय द इंटर्न्स और फॉर दैट मैटर अर्ली रिसर्चर्स. कि पायलटिंग ही नहीं होता है तो जो इतना सारा डाटा आता है एंड में तब पता चलता है इसका रिस्पॉन्स तो अलग ही आ रहा है हर किसी केस में. दैट मीन्स द क्वेश्चन वाज नॉट करेक्ट. तो ये सब एंड में पता चलने से बेटर है कि आप पहले ही उसको वैलिडेट करो. वैलिडेट कैसे करोगे? वैलिडेशन इज डिफरेंट, पायलटिंग इज डिफरेंट. वैलिडेशन मतलब आप पहले तो पीयर टीम को दो, आपके टीचर्स हैं उनको दो, आस्क देयर करेक्शंस. वंस इट इज डन देन यू गो फॉर पायलटिंग. पायलटिंग फॉर 10 रिस्पॉन्डेंट्स. आपके स्टडी सब्जेक्ट अगर पेशेंट है तो 10 पेशेंट को देके देखो उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनको कोई डिफिकल्टी है क्या कोई क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है क्या, ये सब चेक करो और उसके बाद क्वेश्चन मॉडिफाई करो जरूरत है तो और देन कंटिन्यू करो. ठीक है. ना डूज क्लैरिटी. क्या क्या करना है? यू हैव टू बी क्लियर एंड स्पेसिफिक. ठीक है. तो सपोज फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच डू यू एक्सरसाइज. अब मैंने आपसे पूछा कितना है, कब कब मैंने साल भर में बहुत एक्सरसाइज किया लेकिन मैंने लास्ट वीक बहुत कम किया. ठीक है. क्लियरली पूछो. ड्यूरिंग अ वीक हाउ मेनी आवर्स डू यू स्पेंड फॉर एक्सरसाइज. अभी कौन सी एक्सरसाइज वो भी क्लियर चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ब्रिस्क वॉकिंग और स्पोर्ट्स. ये मेंशन करो. पूरा क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए. सिंप्लिसिटी, सिंपल. फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स यू बाय विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. इससे अच्छा है ओवर द काउंटर मेडिकेशन. ठीक है. तो जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हो तो कॉम्प्लिकेटेड मत यूज करो, सिंपल यूज. ओवर द काउंटर ड्रग्स फॉर drugs that you buy without doctor's prescription. Unnecessarily don't complicate it. Okay. न्यूट्रल मतलब आप अपना ओपिनियन वहाँ पे मत प्रेजेंट करो. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग लास्ट मंथ हाउ ऑफन डिड यू ड्रिंक टू मच अल्कोहल. विल डिस्करेज द रिस्पॉन्डेंट्स फ्रॉम एडमिटिंग दैट दे ड्रिंक टू मच. सो इंस्टेड ऑफ दैट वी मे आस्क ड्यूरिंग द लास्ट मंथ हाउ ऑफन डिड यू ड्रिंक मोर देन 5 ड्रिंक्स इन अ डे. So this is neutrality. ठीक है. So similar with chewing of tobacco. How often did you had too much of tobacco? Don't do that. Too much मतलब किसी के लिए 5 बार too much होता है, किसी के लिए 10 बार, किसी के लिए 100 times. Mention very objectively and neutrally. Apply appropriate filter. What is filter? Sometimes certain answers may be followed up by a more detailed question. For example, after getting married, have you ever been told you have high blood pressure? Yes or no? If yes, after how many years of marriage you were first told you have high blood pressure? Dash years old. If no, then go to question number. ऐसे करके सीक्वेंस में उसको प्रेजेंट करो. Now, don'ts or caution. Avoid double negatives. मतलब क्या है? Asking the respondents whether they agree with the statement. Is there never a valid reason for not giving up smoking? ये क्वेश्चन पढ़ो, फिर से मैं पढ़. Is there never a valid reason for not giving up smoking? Never भी आया है, not भी आया है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा exactly मतलब क्या है. So the use of two negative words in the same sentence cancel each other out and make this a positive statement. Therefore, the better way will be
Is there a valid reason for not giving up smoking? Is there a valid reason? Yes or no? So use only one negative. Next, avoid leading questions. Leading questions मतलब wouldn't you say that? Isn't it fair to say? ऐसा मत बोलो, ठीक है? Avoid ambiguity. Ambiguity मतलब क्या है कि होगा क्या इंटरप्रिटेशन होगा वो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ द मैन प्लेज टेनिस विथ हिज ब्रदर एंड ही इज अ रीजनल चैंपियन, इज ही लाइकली टू विन? Is ambiguous because we don't know which brother is the regional champion. ठीक है? If a man plays tennis with his brother and he is a regional champion, he मतलब कौन? जो प्ले कर रहा है वो या उसका भाई? ठीक है? So this is ambiguous. So again avoid that. Avoid double barreled questions. मतलब how many cups of tea or coffee do you drink per day? टी भी पूछ रहे हैं, कॉफी भी पूछ रहे हैं, तो मैं टी 1 कप पीती हूँ लेकिन मैं कॉफी 4 कप पीती हूँ, तो मैं क्या लिखूँ? 5 या फिर 4 या फिर 1. So that you should avoid. Avoid jargon and colloquialism. That means आपके लेवल का टर्मिनोलॉजी, अगर लेमैन को आपको क्वेश्चनर देना है तो आपके लेवल का डेंटल टर्मिनोलॉजी उसको नहीं समझेगा. डेंटल केरीज, उसके बाद स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस, ये सब जार्गन उसको नहीं समझेगा. ठीक है? तो वो सोच के, आप जो रिस्पोंडेंट है उसका सोच के क्वेश्चन को फॉर्म करो. और कोलोक्वियलिज्म मतलब क्या? सपोज इन महाराष्ट्र वी आर यूजिंग द टर्म्स, they may not be used in some other part of the country. For example, in south of India, they may not know, they may be having some alternate word for gutta. In Bengal, they may be having some. So suppose हमारे एरिया में मराठी में या हमारे एरिया में उसका ये वर्ड यूज होता है और आप उसको कंट्री वाइड सर्कुलेट कर रहे हो, तो ये हमेशा सोचो कि ये हमारे एरिया में ही है कि सब तरफ ये वर्ड समझा जाएगा प्रॉपर. ऐसा सब आपको. और सेकेंडली, अगर स्कूल लिटरेट है और अगर इलिटरेट है उसको भी समझना चाहिए. तो ये सब सोच के आपको क्वेश्चनर बनाना है. नाउ, minimize bias and maintain non-threatening tone of framing. For example, how many times have you broken the speed limit because you were late? This is like threatening. ठीक है? तो sympathetic attitude लेना और क्या बोलना है उसको? Have you ever felt under pressure to drive over the speed limit in order to keep an appointment? ठीक है? एकदम अंडरस्टैंडिंग टोन आ गया आप इसमें. ठीक है? या फिर और अच्छे से बना सकते हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू प्रायोरिटाइज द अपॉइंटमेंट ओवर कीपिंग द स्पीड लिमिट? कितना कितना अच्छे से पूछ रहे हैं. देखो, पहले इसमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा, कितने बार ब्रेक किया सिग्नल, स्पीड लिमिट तुमने. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. बट समटाइम्स स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इज नॉट अप्रिशिएटेड, देयरफॉर यू हैव टू रिफ्रेम इट इन अ नॉन थ्रेटनिंग वे. ठीक है? नाउ, हैंडलिंग डिफिकल्ट और एम्बेरसिंग क्वेश्चंस. फॉर एग्जाम्पल, सपोज तुमको कोई क्वेश्चन पूछना है जो मे बी एम्बेरसिंग हो किसी को, तो उसके लिए आप एक्सप्लेनेशन दो, वो क्वेश्चन क्यों पूछा है. तो एक्सप्लेनेशन में लिखो, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल इफ यू कुड गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ टू हेल्प अस पुट योर आंसर इन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है? तो ये ऐसा इंस्ट्रक्शन दो वहाँ पे कि सपोज मेरे को किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगी है कि मेरे लिए वो काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे वहाँ पे अश्योरेंस एक चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्यों चाहिए तुम लोगों को. तो ऐसा लिखो वहाँ पे कि हमारे स्टडी में इसका कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए. एंश्योर द ऑप्शंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ठीक है? मतलब क्या है? हाउ मेनी ईयर्स हैव यू वर्कड इन एकेडमिया? 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, ऐसा नहीं चाहिए. 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. ठीक है? तो 5 इधर भी आया इधर भी आया, तो पहला मार्क करना है कि दूसरा मार्क करना है, वो समझता नहीं फिर. तो ये स्केल में आपको हमेशा ध्यान रखना है दैट इट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. नाउ कमिंग टू स्केल्स. ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में कवर किया है. So the types of scales are comparative scales and non-comparative scales.
So very important is Likert scale. The scale is named after its inventor, psychologist René Likert. It is a psychometric scale commonly used for questionnaire. ठीक है. Now यहाँ पे क्या होता है कि Likert scale contains degree of feeling. Usually 5 और 7 रहता है उसमें स्केल में, 5 और 7 ऑप्शंस. ठीक है. तो लेट अस सी. Likert scale आपको दिख रहा होगा पहली वाली. This is the worst pain I have experienced is a sentence. Do you agree? Strongly agree, agree, neither agree, disagree, strongly disagree. ठीक है. तो अगर मैंने ये स्टेटमेंट किया कि दिस पेन इज द वर्स्ट पेन आई हैव एक्सपीरियंस, इससे आप कितना अग्री होते हो? ठीक है. तो दैट इज अ लाइकर्ट स्केल. ये सपोज कोई डेंटल प्रोसीजर चल रही है, रूट कैनाल चल रहा है और पेशेंट का हमको फीडबैक लेना है कि जो उसको पेन हो रहा था वो कितना हो रहा था. तो बहुत ज़्यादा हो रहा था क्या आपको पेन? कोई बोलेगा ये बहुत ज़्यादा, स्ट्रांगली अग्री. कोई बोलेगा ठीक है, नॉर्मल, नाइदर अग्री नॉर डिसएग्री. कोई बोलेगा नहीं नहीं बिल्कुल पेन नहीं हो रहा. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. ओके. सो डू यू हैव पेन, यस और नो के बजाय हमने इसको रिप्लेस कर दिया है विथ अ रेटिंग स्केल. ठीक है. सो दैट आवर रिस्पॉन्सेस आर मोर एक्यूरेट. नाउ दिस स्केल कैन बी न्यूमेरिक ऑल्सो. मैं बोल सकती हूँ कि 1 to 10 के स्केल पे आप आंसर करो कि आपका पेन कहाँ पे था. तो किसी लोगों को बहुत वर्स्ट पेन है तो 10 को मार्क करेंगे, किसी को नहीं पेन है तो 0 को मार्क करेंगे, किसी को मीडियम है तो 5 पे मार्क करेंगे. लाइक सेम स्केल अगर इलिटरेट इंसान है तो उसके लिए मैं, या फिर कोई चाइल्ड है तो उसके लिए मैं विजुअल एनालॉग स्केल दे सकती हूँ. विजुअल मतलब जहाँ पे पिक्चर्स दिखते हैं. यू कैन सी द स्माइलीज. The first is smiling and the last one is crying. So how much does it hurt? आप उस पर भी मार्क कर सकते हो. So this is called as a vast scale or visual analog scale. ठीक है. Now last type of scale is the Gutman scale or a cumulative scale. ठीक है. So this is quite complex and at your level you might not need this. So I am skipping this. In case if you want to use it for your research, we can have a separate one-on-one session for Gutman scale. Okay. Then there are some scales which are called as semantic differential scales. For example, there are two opposite attributes. ठीक है. तो successful, unsuccessful, severe, lenient, heavy, light. तो उसमें आपको मार्क करना रहता है. So this is also one type of scale. Again, not very commonly used, so I am skipping this. Right. So our questionnaire is ready and now we are going to pilot it. Piloting में कैसे करता है करना है आपको फॉलो, स्टेप्स कैसे फॉलो करना है. तो क्यों करना है पायलटिंग? सबसे पहले कि आपके क्वेश्चनर डिजाइनिंग में अगर कोई भी एरर हो रहा है तो वो आपको समझ जाता है. ठीक है. नाउ इफ यू हैव अ प्री वैलिडेटेड क्वेश्चनर यू मे नॉट पायलट इट. कोई ज़रूरत नहीं है अगर वैसे देखा जाए तो. ठीक है. बट अगर आप कोई प्री वैलिडेटेड क्वेश्चनर को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रहे हो या उसको ट्रांसलेट कर रहे हो मराठी में, हिंदी में, तो आपको पायलटिंग की ज़रूरत है. ठीक है. फिर आप उसमें चेक करो, क्वेश्चन नेसेसरी नहीं होगा उसको रिमूव भी कर सकते हो. ठीक है. सो लाइक दैट. Now, online resources are also there for creating, administering, and analyzing questionnaire. You know this, I am sure. SurveyMonkey, Google Forms, thesis tools. सबसे important है ethical consideration. All information gathered must be anonymous. Keep it confidential. कभी कभी ऐसा होता है किसी स्टूडेंट्स के स्कोर्स हम रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. किसी स्टूडेंट्स का पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. तो ये जो चीज़ें दे शुड बी एनोनिमस and they should be kept confidential. Don't use misleading questions. And participants have the right not to complete and withdraw at any point. Respect their autonomy. ठीक है. And explain them the assurance, give the assurance that you will follow all the ethical considerations. ठीक है. एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जब होती है तब प्राइमरी डाटा फाइंडिंग जो आएंगे आपके तो काफ़ी गलत आएंगे एंड देयरफॉर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड. सो टू सम अप, a good questionnaire should be valid, reliable, clear, succinct and interesting.
It is important to design the questionnaire depending on the conceptual framework of your research question. Scrutinize each question for relevance and clarity. Think of the analysis you are going to perform at the end of the day. And final touch-up will make a difference in your response rate, and always pilot test the questionnaire to perfect questionnaire. Now you're ready to collect the data, right? So I wish you luck. Thank you for your patient listening.